Hello everyone, today we will discuss genetics MCQs. So let's begin with this session. Who is known as the father of genetics? Morgan, Mendel, Watson, Bateson. So here correct answer is Mendel. Gregor Mendel, who worked on the pea plants and discovered the fundamental law of inheritance. That's why he is known as the father of genetics. Who coined the term जीन, यानी जीन वर्ड किसने दिया था? वॉटसन, बीडल, मेंडल या जॉनसन? तो देखिए जॉनसन, डेनिश बॉटनिस्ट विलियम जॉनसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म दिया था जीन। उन्होंने इसे एज ए फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी बताया था। जीन को क्या बताया था? फंक्शनल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। क्लियर है? तो यहाँ जॉनसन करेक्ट आंसर। Genetics deals with Mendel's law, heredity, variation, all of the above. So here correct answer is D, all of the above. Genetics deals with Mendel's law of inheritance, hereditary, that means the transfer of character from one generation to another generation, and variation, like if the variation comes, the parents, the child is not looking same as the parent, तो variation आती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ क्या है? Genetics deals with Mendel's law of inheritance, hereditary, variation, all of the above. Correct answer is D. The tendency of an offspring to resemble its parent is known as variation, heredity, resemblance, inheritance. देखिए जो पेरेंट्स जैसे ही जो बच्चे दिखते हैं वो किस वजह से दिखते हैं? हेरिडिटी की वजह से। हेरिडिटी क्या है? कि जब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि पेरेंट से किड में जो जाते हैं कैरेक्टर्स, जाते हैं जीन जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं हेरिडिटी। Mendel's principle of inheritance are based on asexual reproduction, vegetative reproduction, sexual reproduction, all of the above. So here correct option is C. जो Mendel's का principle था inheritance, principle of inheritance are based on sexual reproduction. An individual who has two of the same allele is said to be homozygous, heterozygous, homologous, heterologous. Here correct option is A, homozygous. Having two identical allele of a particular gene is called as homozygous. The number of chromosomes present in human being 48, 46, 22, 23. So here correct option is B. How many chromosomes are present in human being? Is 46 or 23 pairs. The appearance resulting from gene combination is referred to as genotype, phenotype, phototype, allele. Appearance resulting from the gene combination, यानी दिखने का कैरेक्टर, ठीक है? क्या कहलाता है? दिखने को हम कहते हैं phenotypic effect, ठीक है? अगर कोई लंबा है या छोटा है या हाइट, कलर डार्क है या वाइट है, उसको हम कहेंगे phenotypic character. Option B. Appearance means phenotypic character. Mendel called gene as dash, which are the unit of inheritance. Mendel ने जीन को क्या कहा? मतलब क्या कहा जिसे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन ए एलिली, फैक्टर, जीनोटाइप, फिनोटाइप. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. Mendel called gene as a factor, which are actually the unit of inheritance. ये ही ट्रांसफर होते हैं from one generation to another generation. Mendel conducted experiment of which of the following plant? Garden pea, papaya, cotton, wild pea. सबको पता है कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो उन्होंने बताया था, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने गार्डन पी पे. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. Pea plants were used in Mendel's experiment because they have shorter lifespan, they had contrasting characters, they were easily available, all of the above. तो देखिए जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था? बिकॉज दे हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन, वो जल्दी से ही अपनी लाइफ साइकिल उनकी क्या है? छोटी होती है, ठीक है? और उनमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी होते हैं, ठीक है?
कंट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब क्या होता है? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है कि जैसे एक सीड हो गया, वो कैसा है? येलो है, एक ग्रीन है, एक रिंकल्ड है, एक स्मूथ है, और प्लांट की एक लंबाई ज़्यादा है, टॉल है, एक ड्वार्फ है, छोटा है, ठीक है। तो इस तरह के कैरेक्टर्स उनको देखने को मिले कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, एंड दे वर अवेलेबल इजीली। डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल ऑफ द अबव। In human, males are heterogametic, homogametic, hermaphrodite, Homo sapien. Human males produces two type of sex chromosome, X and Y. That's why they are known as heterogametic. If they produce X and Y chromosome, that means they produce gamete of two type like X and Y. That's why they call as heterogametic. Heterogametic means होता है अलग अलग gametes produce होना, X and Y. Chromosomal aberrations are commonly observed in sickle cell anemia, cancer cell, mutants gene. Chromosomal variation basically 4 टाइप की होती है, like deletion, duplication, inversion and translocation. जब कभी DNA का पोर्शन डिलीट हो जाता है तो डिलीशन है, ठीक है। अगर वो इन्वर्ट हो जाए तो इन्वर्जन है, अगर ट्रांसलोकेट हो जाए फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर तो उसे ट्रांसलोकेशन कहेंगे, ठीक है। और ऐड हो जाता है अगर उसमें कोई जीन तो उसको कहेंगे क्रोमोसोमल एडिशन, ठीक है। तो ये 4 तरह के डिसऑर्डर होते हैं। ये मोस्टली किस में पाए जाते हैं? कैंसर सेल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डाउन सिंड्रोम? इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। करेक्ट है। इफेक्टेड पर्सन हैज मेंटल रिटार्डेशन। करेक्ट है। इफेक्टेड पर्सन हैज अर्ली एजिंग। दिस इज नॉट करेक्ट। इफेक्टेड पर्सन हैज फरोड टंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी इज करेक्ट। क्या होता है डाउन सिंड्रोम में? डाउन सिंड्रोम जो पर्सन होता है उसके अंदर क्या होता है? बेबी के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, 21 ट्राइसोमी बोलते हैं। 21 जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम क्या होता है? एक एक्स्ट्रा हो जाता है, उसको बोलते हैं 21 ट्राइसोमी या डाउन सिंड्रोम। इसके कैरेक्टर है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है कि मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है और टंग भी फरो होती है। एंड यू कैन सी ए पिक्चर ऑफ डाउन सिंड्रोम पेशेंट ऑन स्क्रीन। यहाँ पर देखिए आप, इस तरह का पेशेंट होता है डाउन सिंड्रोम का, थोड़ा सा मेंटली रिटार्ड लगता है। A change in the genetic material or DNA sequence is called as inversion, deletion, duplication, mutation. अब देखिए म्यूटेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। जब भी म्यूटेशन होती है तो क्या होता है कि चेंज आता है डीएनए के अंदर, आइदर ड्यू टू मिस्टेक व्हेन द डीएनए इज कॉपीड, जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है या तो तब मिस्टेक हो जाती है, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी ये चेंज आ जाता है डीएनए में। एंड एनवायरमेंटल फैक्टर क्या हो सकता है? लाइक पोल्यूशन हो सकता है, लाइक यूवी लाइट्स जो होती हैं उसके पड़ने से भी चेंजेस आ जाते हैं डीएनए में, तो उसको कहेंगे म्यूटेशन। द सेक्स ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। हियर करेक्ट ऑप्शन इज बी। Father determines the sex of the baby depending on whether their sperm is carrying an X chromosome or Y chromosome. If X chromosome combines with the mother X chromosome to make a baby girl, and if Y chromosome combined with X mother's X, then it will form a baby boy. So here correct option is B. So here you can see this is the X and Y chromosome of male, and if they combine with the X then they produce boy, and if they combine with the girl they produce girl. Allosomes are organelle, allele, chromosome, sex chromosome. So here allosomes are sex chromosome. सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं? जो सेक्स डिटरमाइनिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल XY एंड XX। XY होते हैं मेल में एंड XX होते हैं फीमेल में। एंड एक होते हैं ऑटोसोम्स, वो जो नॉर्मल ऑटोसोम्स होते हैं दोनों में एक जैसे होते हैं, ठीक है। 22 पेयर्स या 44 क्रोमोसोम्स होते हैं ऑटोसोम्स, और 2 होते हैं उसमें 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हम कहते हैं एलोसोम्स। नाउ यू कैन सी ऑन द स्लाइड 1, 2, 3 and till 22 they are autosomes. They are common for both male and female. अब यहाँ देखिए XY, XX and XY. XX in female and XY in male. इसको कहते हैं हम allosomes. Y-linked trait are inherited from female, male, both male and female, none. So obviously Y-linked trait कहाँ से आएंगे? Inherit कहाँ से होंगे? मेल से होंगे, क्योंकि Y क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? मेल में प्रेजेंट होता है। Option B is correct here. Which chromosomal combination is responsible for maleness in male? XO, XX, YY और XY. तो यहाँ देखिए जो मेल क्रोमोसोम होता है उसको हम लिखते हैं XY, ठीक है। इसमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं तो 2 गैमेट बनेंगे, एक X और एक Y, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे XY से।
Option D is correct here. A cross between homozygous recessive and heterozygous plant is known as test cross, back cross, dihybrid cross, monohybrid cross. So here a cross between homozygous recessive and heterozygous plant, like you can see this is the TT plant, capital T and small t represent the heterozygous plant, that means dominant and recessive both character are there, and this is the recessive character, both characters are recessive. ठीक है, तो इन दोनों में जब क्रॉस कराया गया तो 50% टॉल प्लांट प्राप्त हुए और 50% ड्वार्फ. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे फिनोटाइप कैरेक्टर को डिटरमाइन करना टेस्ट क्रॉस कहा जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर हमें ड्वार्फ भी प्लांट प्राप्त हुए हैं. ड्वार्फ प्लांट मतलब छोटे. ठीक है, स्मॉल है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो पेरेंट है वो एक हेट्रोजाइगस प्लांट है. ठीक है, एक क्या है, हेट्रोजाइगस है और दूसरा रिसेसिव है. बट यू डोंट हैव टू गो इनटू द डीप, बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट हेट्रोजाइगस प्लांट क्या होता है. जैसे स्मॉल कैरेक्टर है टीटी, दिस इज हेट्रोजाइगस प्लांट एंड दिस इज हेट्रोजाइगस प्लांट एंड दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव. ठीक है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए. और इन दोनों के क्रॉस को क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं. A genetic disease in which blood fails to clot normally, Klinefelter syndrome, Turner syndrome, hemophilia, none. हीमोफीलिया क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि ब्लड फेल्स टू क्लॉट नॉर्मली, ब्लड आपका जो रक्त का थक्का है वो नहीं जमता है. क्यों नहीं जमता है, क्योंकि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ये जो एक्स लिंक के ऊपर जीन होता है उसमें डिफेक्ट आ जाता है. उसकी वजह से क्या होता है कि जो फैक्टर्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं 8, 9 और 11, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो नहीं बनते हैं. ठीक है, डिफेक्ट्स आ जाता है बेसिकली जीन के अंदर, तो इसको हम कहेंगे हीमोफीलिया. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट हीमोफीलिया में रक्त का थक्का यानी कि क्लॉट नॉर्मली नहीं जमता है. ठीक है, एक तो ये बात याद रखनी है और दूसरा याद रखना है कि ये कैसे होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है. एक्स लिंक्ड मतलब एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज है. क्लियर है, उसमें डिफेक्ट आने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है. व्हेन द एक्टिविटी ऑफ one gene is suppressed by the activity of another gene, it is known as pseudodominance, hypostasis, epistasis, incomplete dominance. So इसको हम कहते हैं एपिस्टेसिस, जब एक जीन दूसरे जीन की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है. ठीक है, तो उसको हम कहेंगे, दिस फिनोमिना इज नोन एज एपिस्टेसिस. Sexual reproduction causes genetic variation because chromosomal variation, shuffling of gene, blending of gene, all of the above. So here करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि इसमें क्रोमोसोमल वेरिएशन भी होती है, शफलिंग ऑफ जीन्स भी होता है एंड ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स भी होता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर द फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरीज आर rudimentary? Klinefelter syndrome, Down syndrome, Turner syndrome, phenylketonuria. In which of the following disorder the females are sterile as ovaries are rudimentary? Rudimentary means underdeveloped. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो इसमें देखिए आपको करेक्ट ऑप्शन इज डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, फिनाइलकीटोयूरिया. सो हेयर करेक्ट ऑप्शन इज टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है. क्लियर है, यानी कि जो गर्ल चाइल्ड है वो बॉन्ड विथ ओनली सिंगल एक्स क्रोमोसोम. ठीक है, तो वहां पर उसके क्या होगा, ओवरीज रूडिमेंट्री होती है, अंडर डेवलप होती है इसमें. ऑप्शन सी इज करेक्ट. A person without a Y chromosome will be show a male characteristic, always show female characteristic, show both male and female characteristics, sterile but show male characteristics. If person don't have Y chromosome, then what will happen to that person? They always show female characteristic features. Option B is correct here. The mutation arises due to change in a single base pair of DNA is known as point mutation, single mutation, both A and B, none. So here the mutation arise due to change in single base pair of DNA is known as point mutation, where single nucleotide base is changed, like inserted or deletion. From insertion or deletion, it can arise a point mutation. Only single base pair of DNA is changed. This is known as point mutation. For a color blind person, red color appear as yellow, green, black, red, dark red. देखिए जो कलर ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनको रेड कलर जो होता है वो थोड़ा ग्रीन दिखता है. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. दिस इज ऑल्सो ए जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इट इज कैरिड फ्रॉम मदर टू सन विथ एक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, एक्स क्रोमोसोम्स में कलर ब्लाइंडनेस होती है एक्स क्रोमोसोम के थ्रू.
this color blindness are passed down on the X chromosome. Since it is passed down on the X chromosome, red green जो color blindness होती है वो more common in men's only.